Hello, good morning. Hello, how are you? Now, students, now the group for class 11. This is the element group study of element of group 14. Okay. Now the group 14 elements are carbon, silicon, germanium, tin, lead. Okay. Carbon, silicon, germanium, tin, lead. This is the carbon family 14 group elements. Okay. Now next see the electronic configuration of this element. Now see the electronic configuration. The general configuration is NS2NP1. Okay. Now see the general configuration is NS2NP1. Okay. Carbon, that is plus 6, plus 8, that is 14, again plus 8, that is 32, 18, 32, 32 plus 18, 50, and 50 plus 32 become 82. Okay. Now see the electronic configuration of carbon is 2s2 2p2, silicon 3s2 3p2, germanium now see 4s2 4p2, and tin stanners, that is 5s2 5p2, and lead 6s2 6p2. 6 पीरियड में है ये. Now carbon and silicon, see, both are non-metals. You are seeing that is non-metal. Silicon generally it is a non-metal used as a semiconductor, but initially it is non-metal. Germanium को हम लेते हैं metalloids में, and silicon and lead are metals. Okay. Understood? Carbon and silicon देखिए गौर से देखिए, that is non metal. Germanium metalloids and silicon tin से tin and lead metals होती हैं. Now next, now the inert pair effect. Now we see in inert, the general configuration is NS2NP2. Okay. Now down the group, number of electrons in D or F orbitals increases, and hence the inert pair effect, that is due to the inert pair effect, that oxidation number, if you see the oxidation number +2 and +4. Okay. Down the group starting कार्बन देखिए, कार्बन शो करता है दैट इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट व्हेन यू डाउन द ग्रुप +4 वैलेंसी स्टेबिलिटी ऑफ +2 वैलेंसी इंक्रीजेस. जैसे सब डाउन होते जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ +2 increases, +4 decreases. Why? Because of inert pair effect. जैसे मैंने पहले बताया था ग्रुप 13 में, due to the inert pair effect s orbital do not participate in the bond formation. That's why when you down the group +2 stability of +2 increases. कार्बन हमेशा +4 शो करता है, लेकिन आप जैसे लेड में जाएंगे इट शोज +2 वैलेंसी. ओके. नाउ सी दिस इज द inert pair effect. Inert vector lead shows +2 valency. You are seeing that lead show +2 valency. Okay. This is the +2 valency. Tendency to release 2 electron increases, while tendency to release 4 electron decreases when you down the group. s orbital अंदर हो जाते हैं. They do not participate in the bond formation. That's why लेड जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, लेड हमेशा +2 वैलेंसी शो करता है. ओके. नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट, वही है मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन स्टेट. कार्बन 1s2 2s2 2p2. अब ऑक्सीडेशन स्टेट इनका होता कैसे, +4 कैसे शो करता है, आप यहाँ देखेंगे प्लस शो करने के लिए दिस इज द 2s2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p2. तो s इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, s का इलेक्ट्रॉन जंप करके p ऑर्बिटल में चला जाता है. नाउ द देयर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, द वैलेंसी बिकम +4. ओके. तो कार्बन जो होता है CCl4. ओके. यहाँ देखिएगा CCl4, और नीचे जैसे जाते हैं +2, दैट इज कार्बन का कंपाउंड हमेशा CCl4 बनेगा, लेकिन लेड का आपको कभी भी PbCl4 नहीं मिलेगा. लेड हमेशा मिलेगा PbCl2, +2 वैलेंसी के साथ मिलेगा. ओके. अंडरस्टूड. नाउ कार्बन जो होता है, यहाँ फिर से अगेन देखिए, कार्बन स्टेबल है +4 एंड -4. कार्बन क्योंकि दोनों शो नीदर गेन नॉर लॉस इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई +4 एंड -4. इट फॉर्म जनरली कोवलेंट कंपाउंड. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम भी स्टेबल होते हैं +4 में, बट tin and lead stable in +2. When you down the group,
maximum oxidation state, stability of maximum oxidation state, higher oxidation state decreases due to the inert pair electron. Okay, now due to the absence of d orbital, carbon cannot expand its covalency more than 4. कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि टिन एंड लेड के कंपाउंड हमेशा +2 वैलेंसी के साथ मिलेंगे, जैसे PbCl2, PbO, आपने यही सुना होगा। ओके, नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पर अगर हम आ जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 14 एलिमेंट। ओके, तो केमिकल रिएक्टिविटी में क्या आप देखेंगे, ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। पर ऑक्साइड देखिए दो टाइप के बनाते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब इस ग्रुप के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, दैट इज मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। सी, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। ना तो मोनोऑक्साइड दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन का सिलिकॉन ऑक्साइड देखिए GeO, तो फॉर्मूला SNO एंड PbO, आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं। एक ध्यान देने वाली बात है कि कौन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड सिलिकॉन आर न्यूट्रल, ये जनरली ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव में बहुत आता है, दैट इज इट इज न्यूट्रल। जर्मेनियम एंड टिन के होते हैं एसिडिक इन नेचर, और लेड का ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। अगर हम डाइऑक्साइड की बात करते हैं, नाउ सी द डाइऑक्साइड दैट इज MO2, तो कार्बन एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट इज वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक। और जर्मेनियम का भी वीकली एसिडिक होता है, एसन एम्फोटेरिक, और PbO2 कैसा होता है, अनस्टेबल, मिलता ही नहीं है बहुत ज्यादा। तो दिस आर द, देखिएगा अनस्टेबल है। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो आपको इनका नेचर एसिडिक, न्यूट्रल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यही चीज मैंने आपको बताया, एम्फोटेरिक होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि PbO2 कभी भी +4 एलिमेंट, आपने PbO2 अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि लेड में अगर हम O2 बनाते हैं, डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो इट शोज +4 वैलेंसी, लेकिन वी नो दैट +4 वैलेंसी इज नॉट स्टेबल फॉर लेड। लेड के लिए लेड कभी +4 शो नहीं करता है, इसलिए PbO2 इज अनस्टेबल, ये कंपाउंड नहीं बन पाता है। ओके, अगर हम मोनोऑक्साइड कार्बन की और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, यहाँ देखिए, अगर मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो इट शोज +2 वैलेंसी, इफ यू टॉकिंग अबाउट द CO2 दैट इट शोज +4 वैलेंसी। दोनों ही स्टेबल हो जाती है, +2 भी मिलता है, +4 भी मिलता है, लेकिन डाउन द ग्रुप आपको पता है कि +4 डिक्रीजेस, दैट इज लेड ऑक्साइड नहीं मिलता है। ओके, PbO इसलिए मिलता है क्योंकि PbO में इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, PbO में वैलेंसी +2, बट यहाँ पर क्या हो जाती है, +4। तो अगर आप कॉन्सेप्ट बेस पढ़ाई करते हैं, ऑक्सीडेशन के स्टेट के बेस पर पढ़ाई करते हैं, तो आप कभी भी इन बातों को भूलेंगे नहीं। नाउ द एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर के साथ देखिए, जनरली दे डू नॉट, ऑल द एलिमेंट दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, डायरेक्टली वाटर के साथ गर्म नहीं ही रिएक्ट नहीं करते हैं। ओनली टिन, ध्यान रखिएगा बात, ओनली टिन दैट इज स्टेनस रिएक्ट विद द बॉइलिंग वाटर। अगर आप पानी के साथ गर्म करते, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो बॉइलिंग वाटर के साथ ही सिर्फ रिएक्शन होती है। तो टिन, ओनली टिन एसन रिएक्ट विद द बॉइलिंग वाटर, ध्यान रखिएगा, इट फॉर्म stannic oxide that is SNO2, it forms stannic oxide that is SNO2। okay, सिलिकॉन जर्मेनियम देखिए नो रिएक्शन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम नो रिएक्शन, ओनली टिन हाइड्रोलिसिस होता है एंड फॉर SNO2। इवन Pb फॉर्म ऑक्साइड फिल्म में, मतलब ये जनरली नो रिएक्शन होती है, इस पर ऑक्साइड फिल्म बन जाती है, एक बार लेयर चढ़ जाती है, देन डू नॉट रिएक्ट। दिस इज द, ध्यान रखें, बिल्कुल नोट कर लीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओनली स्टेनस ऑक्साइड इज form। okay, now see action of halogen, because we are studying about the general characteristics of group 14 elements, general characters of group 14 elements and chemical reactivity। now the action of halogen, halogen में +2 and +4 वैलेंसी है। अगर +2 वैलेंसी होती है तो डाइहेलाइड्स फॉर्म होंगे, +4 वैलेंसी के साथ टेट्राहेलाइड्स फॉर्म होंगे, +2 के साथ डाइहेलाइड्स एंड +4 के साथ टेट्राहेलाइड कंपाउंड फॉर्म होते हैं ना। तो +2 के साथ जब डाइहेलाइड फॉर्म होता है, आपको पता है
डायहाइलाइट फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पर +2 कार्बन +2 एंड +4 बोथ दोनों वैलेंसी शो करता है। दैट इज जनरली कार्बन के साथ +2 वैलेंसी अनस्टेबल होती है, इट शोज ओनली +4 वैलेंसी। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपने CCl4 सुना होगा, +2 वैलेंसी इज नॉट स्टेबल। बट लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो आपको +2 मिलती है, दैट इज PbCl2 आपको मिलेगा, है ना। लेकिन Pb आपको कभी भी PbI4 या इस टाइप के कंपाउंड नहीं मिलेंगे। लेड PbI4 PbCl4 नहीं मिलेगा, बिकॉज +4 इज नॉट स्टेबल। ओके, नाउ सी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन में मैंने आपको बताया है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, टेट्राहेलाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन के टेट्राहेलाइड स्टेबल है, मोर स्टेबल है देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, और सबसे कम स्टेबल होते हैं लेड के टेट्राक्लोराइड, बिकॉज वो तो फॉर्म ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, टेट्राहेलाइड की स्टेबिलिटी क्या होते हैं, स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है इसकी, टेट्राहेलाइड की डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर आप बहुत गौर से देखते हैं तो आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन में अगर हम बात करें तो कंपाउंड जो बनते हैं, देखिए टिन के टेट्राफ्लोराइड लेड के साथ प्लस फ्लोराइड्स बन सकता है, बिकॉज क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं ये जो होते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सिर्फ फ्लोरीन ही आपको पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन इतना ताकतवर होता है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि वो लेड से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ठीक है, तो इसलिए अगर +4 में अगर आपको इनर्ट पेयर अंदर के इलेक्ट्रॉन निकालवाने हैं तो ओनली फ्लोराइड के साथ कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। तो ओनली PbF4 इज नोन, PbF4 is known with means stannous or with the stannous and lead only fluorides are stable form मिलते हैं, but they are ionic in nature, they are ionic in nature, this is not the covalent। PbI4 does not exist, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, germanium lead form dihalides, we know generally they form dihalides with the other chloride, bromide, iodide के साथ they form dihalide, they do not form tetrahalide। और अगर टेट्राहेलाइड फ्लोराइड्स के साथ बनता है तो वो कैसे नेचर का होता है, आयोनिक नेचर का होता है। PbI bond does not release enough energy to अनपेयर 6s इलेक्ट्रॉन, वही मैंने आपको बताया ना। द स्टेबिलिटी ऑफ डायहाइलाइड्स की अगर हम बात करें, अगर हमने स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहाइलाइड पढ़ा है तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहाइलाइड डिक्रीजेज। लेकिन अगर हम डायहाइलाइड्स की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ द डायहाइलाइड जो होता है when we down the group it decreases, it is increases, dihalides it is increases। अगर अप एरो बना है तो आप उसके हिसाब समझ लीजिए, डायहाइलाइड जो होता है डाउन द ग्रुप जो होता है स्टेबिलिटी डिक्रीजेस होती है, इंक्रीज होती है। डायहाइलाइड्स की स्टेबिलिटी ऑफ डायहाइलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आप देखोगे लेड क्लोराइड की सबसे ज्यादा है +2 में। ओके, तो कंफ्यूजन है +2 एंड +4। नाउ द हाइड्रोलिसिस, अगर हम बात करें ये एक अलग सी रिएक्शन मिलती है। अगर इन क्लोराइड स्पेशली सिलिकॉन की देखें, अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्लोराइड इज रिप्लेस बाय द हाइड्रोक्साइड आयन और उसकी जगह OH आ जाता है, दैट इज सिलिसिलिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिलिसिलिक एसिड, SiOH4। ये फॉर्मूला किसका होता है, हाइड्रोलिसिस पर सिलिकॉन रिएक्ट करता है फॉर्म सिलिसिलिक एसिड, ध्यान रखिएगा। नाउ कार्बन जो होता है शो एनोमलस बिहेवियर विद द अदर एलिमेंट्स। आपको पता है हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो होता है अदर एलिमेंट से डिफरेंट होता है, रीजन सब जगह सेम लगता है, दैट इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वेरी हाई आयनेशन एंथैल्पी। ये सब के साथ रीजन लगता है, इसलिए फर्स्ट मेंबर शो एमोलस बिहेवियर विद द अदर एलिमेंट्स, उन सबसे अलग होता है। नाउ फिर हम देखते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। अब कार्बन के साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, पहली बात तो एलोट्रॉपी। आपने देखा होगा एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, देयर डिफरेंट कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई उसी में बनी है पूरी, इस डिफरेंट नेचर के कारण ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है। तो बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज लोएस्ट आयोनिक एटॉमिक नंबर, कार्बन इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन द ग्रुप 14 एलिमेंट। ठीक है, among the elements of group 14 carbon has the highest melting point, has the highest ionization enthalpy and electronegativity। तो कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। फिर अगर हम बात करें ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हर किसी से ऐसा रीजन है, अगर डी ऑर्बिटल एब्सेंस होते इट हैज नो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। तो अगर एब्सेंस ऑफ हर
से नेगेटिविटी समझिए आप। देखिए अगर स्मॉलर साइज है, लोएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम है, तो इसलिए हार्डेस्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका विद द अदर एलिमेंट्स। फिर आपका आता है अगर डी ऑर्बिटल एब्सेंस है तो इससे क्या हो रहा है, इससे कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बना पाता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही होती है। पूरा आपने बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है इसकी, 4 ही होती है। कार्बन शोज अ टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन, लॉन्ग चेन, लंबे लंबे कंपाउंड्स कार्बन के बन जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़े हैं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा, एल्किन एल्किन एल्काइन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सारे कंपाउंड्स लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या कंपाउंड मल्टीपल बॉन्ड हैविंग सिंगल डबल मल्टीपल बॉन्ड, सब किसके कारण होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन की ये डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप एलिमेंट बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस रैपिडली, क्योंकि हम जैसे से डाउन द ग्रुप जाएंगे एलिमेंट्स एटम एलिमेंट्स बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज होती, जल्दी टूट जाते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, बिकॉज इट व्हेन ड्यू टू द इंक्रीजिंग द एटॉमिक रेडियस होता है, न्यूक्लियस की पावर खत्म होती जाती है एंड दे आर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, द टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन डिक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन। इसलिए इस ग्रुप में सिर्फ कार्बन की टेंडेंसी ज्यादा होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करने की, बॉन्ड बॉन्ड कार्बन कार्बन बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड। और जैसे सब डाउन द ग्रुप जाएंगे इसकी टेंडेंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। नेक्स्ट आता है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी आपने पढ़ा हुआ है, इट्स वेरी गुड नेचर। एलोट्रॉपी पूरा पढ़ के रखे हो। फिनोमेना ऑफ एक्जिस्टिंग एलिमेंट मीन्स दे आर हैविंग same chemical properties but different physical properties. The phenomena is called allotropy और allotropes होते हैं। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। इसमें आपके आते हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन में आता है ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लैरेन, ये आपके क्रिस्टलाइन होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन में आता है कोल, कोक, ये सारे आपके किसके, काजल, ऑल आर नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। आपने बहुत पहले से 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट और डायमंड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो डायमंड आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, बहुत टफ स्ट्रक्चर होता है ना। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑल 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इतना हार्ड होने का दैट इज इट इज अ हार्ड सब्सटेंस यूज एज अ कटिंग टूल्स। अगर आप देखेंगे तो उसको कटिंग टूल्स किसी काटने के लिए मीन्स एज यूज एज अ कटिंग टूल होता है। जो भी आप कांच काटते हैं, कांच काटने में जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है उसमें डायमंड लगा होता है, अगर आप गौर से देखेंगे तो वो एज ए कटिंग टूल्स बिकॉज ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस यूज किया जाता है। फिर आप देखोगे डायमंड वही ज्वेलरी एंड ऑल्सो इन द प्रेशियस जेम्स यूज एज अ abrasive for the sharpening hard tools because of hardest structure, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट में यूज किया जाता है। ये डिफरेंट यूजेस जो आप पढ़ते आ रहे हो, यूजेस ऑफ डायमंड, ओके। नाउ ग्रेफाइट के लेयर स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, 3 बॉन्ड्स होते हैं और ईच कार्बन हैविंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट्स अ लेयर स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और लेयर स्ट्रक्चर आपस में वॉन्डरवल फोर्स से आपस में कनेक्ट होती हैं। डिफरेंट लेयर्स होती हैं आर कनेक्टेड विद द वॉन्डरवल फोर्स एंड ईच कार्बन बॉन्डेड विद द 3 कार्बन एटम, सो 1 इलेक्ट्रॉन बिकम एक्स्ट्रा एंड दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन व्हेन यू प्रोवाइड द एनर्जी इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई graphite is a conductor of electricity and it is in sp2 hybridization state। अब यही इसके बारे में लिखा, कंडक्टर था वंडरवल फोर्स होता है जो आप पढ़ते होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, डिस्टेंस लेयर दिया, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बन ग्रेफाइट। फिर आपका आता है यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, इज अ सॉफ्ट होता है, स्लिपरी यूज होता है, यूज ड्यू टू द स्लिपरी नेचर इट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट इंस्टेड ऑफ ऑयल, लुब्रिकेंट की तरह यूज करता है बिकॉज ऑफ स्लिपरी लेयर स्ट्रक्चर होता है। और कंडक्ट बिकॉज ऑफ कंडक्टिविटी या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज एज अ इलेक्ट्रोड, इसको इलेक्ट्रोड बनाने में यूज किया जाता है। एंड लेड पेंसिल में यूज किया जाता है, ड्राई सेल्स और बैटरी में ये यूज किया जाता है। तो ग्रेफाइट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें लिखे हुए हैं तो आप इससे पढ़ सकते हैं यूजेस क्या क्या है, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट जो पहले से पढ़ता है, जितने आपने प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दे आर डिफरेंट बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको ये डिफरेंस दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, वो जो आप पढ़ते आ रहे हो प्रीवियस
स्लाइड में वही डिफरेंस बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डायमंड्स एंड ग्रेफाइट. नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इस साल नहीं है केमिकल प्रॉपर्टीज, बट आप कुछ देख सकते हैं. यू कैन नोट डाउन द फॉर्मूले दैट इज carbon. What is the formula of producer gas? Carbon monoxide plus N2, CO plus N2 combinedly called producer gas. आप नोट कर लीजिए, CO plus N2 is combinedly called producer gas, and CO plus H2 is called water gas. CO plus H2 is called water gas, and CO plus nitrogen N2 is called producer gas. ठीक है, कंपाउंड्स बनते हैं, इसे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये फॉर्म होता है. तो आपको बस प्रोड्यूसर गैस, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन इस पर रिड्यूस्ड हो गया है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन द जनरल डिस्कशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स. ओके, तो प्रोड्यूसर गैस हो गया, आपको वाटर गैस हो गया फॉर्मूला. दीज आर द ग्रुप 14 एलिमेंट्स. ओके, थैंक यू.